Good morning, students. Good morning, Good sir. morning, sir. Okay, so good morning to all of you once again. Welcome back in social science subject live class for standard 10th. Okay, so well, dear students, Sir. without wasting any time, let us start with where we have left yesterday. Would you have any doubt before we start with? Is there any doubt, students? Otherwise, we'll proceed for the topic. Is there any doubt? No, sir. No, No, sir. sir. Okay. So, Vaibhav Pawar, please switch on your video. Vaibhav Pawar, switch on your video. Vaibhav Pawar, switch on your video. Yes. Satyam Chandel, Anudipa Moon, Tanvi. Am I audible? Yes, sir. Please switch on your videos. Yes, sir. Okay. Well, fine. So, dear students, we have completed up to this section. Okay. The last line that we did is this one. Okay. So, such soil are more common in Piedmont plains such as Duar, Coes and Tarai. Now, what are Piedmont plain? ठीक है, Piedmont plain क्या होते हैं? ठीक है. So, Piedmont plain is a name. Piedmont plain is a name given to the plain areas. Piedmont plain उन plain areas को नाम दिया गया है which are formed by the Himalayan rivers. Piedmont plains कौन बनाएंगी? हिमालयन Piedmont plain पहली चीज. ठीक, अब उस Piedmont plain में होगा क्या? ठीक है. So in Piedmont plains the Himalayan rivers formed. So Piedmont plains मतलब कि हिमालयन रिवर एक नैरो वैली में, छोटी सी वैली में क्या करती हैं? प्लेन एरिया फॉर्म करती हैं. सो दोनों तरफ तो हो गए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में लाखों करोड़ों सालों में रिवर ने क्या लेकर के आई है? सेडिमेंट लेकर के आए. तो वो सेडिमेंट कहाँ जम गया? रिवर में नीचे जम गया. ठीक है. इस तरीके से जो प्लेन बनते हैं दे आर कॉल्ड एज Piedmont प्लेन. इस Piedmont प्लेन में, इस Piedmont प्लेन में मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर नहीं होती, बल्कि मोटी मिट्टी होती है. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Piedmont plain. Now in local languages in the Himalayas, in local languages in the Himalayas, these Piedmont plain are called as Duar, Chos और तराई. हिमालय के अलग अलग इलाके में इन प्लेन्स के नेम क्या हैं? डिफरेंट दिए हुए हैं. ठीक. देन अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन और कंपोनेंट, है ना, साइज ऑफ ग्रेन मतलब मिट्टी के कण मोटे हैं, बारीक हैं या मीडियम साइज के हैं. ठीक. तो अपार्ट फ्रॉम द साइज, soil are also described on the basis of their age. Now age means कितनी पुरानी मिट्टी बनी है. Because formation of soil is a continuous process. मिट्टी का बनना, सॉइल का जो फॉर्मेशन है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. सॉइल फॉर्मेशन क्या है बेटा? सॉइल फॉर्मेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना. अब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब हजारों करोड़ों साल पहले कोई सॉइल
कुछ पोर्शन ऑफ सॉइल करोड़ों साल पहले बना होगा, है ना, और some portion of the soil might be around 1000 years back. Okay, it means we can consider कि कौन सी सॉइल कितनी पुरानी थी, ठीक है. So that is based on the age of the soil. So on the basis of age of the soil, okay, so alluvial soil can be classified as old alluvial, that is Bhangar, and न्यू एलिवियल दैट इज खादर, ठीक है. सो एज के आधार पर कि कितनी पुरानी, कितने पहले ये एलिवियल सॉइल बनी, ये मिट्टी बनी. सो ऑन द बेसिस ऑफ एज एलिवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलिवियल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बांगर. हिंदी में क्या बोलेंगे, बांगर, BANGAR, and new alluvial soil खादर. Okay, Satyam, Nandini and Rakshit, switch on your videos. ठीक, अभी इस सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिवियल सॉइल बेस्ड ऑन एज, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर, ऐसा करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में. डिफरेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर, ऐसा करके आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है. वेल, सो द एलिवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज old alluvial soil, that is Bhangar, and new alluvial soil, that is Khadar. The Bhangar soil has higher concentration. The Bhangar soil has higher concentration, यानी भांगर सॉइल में ज्यादा concentration होता है. किसका? So भांगर soil has higher concentration of कंकर nodules called than the खादर. ठीक, अब कंकर मतलब आप सुना होंगे ना, कंकर पत्थर होते हैं छोटे छोटे से. हैव यू हर्ड, है ना, कई बार हम शब्द बोलते हैं ना, कंकर और पत्थर. यस सर. सो जो भांगर वाली सॉइल है, यानी ओल्ड एलिवियल सॉइल है, जो ओल्ड एलिवियल सॉइल है, उसमें क्या होंगे, कंकर नोड्यूल्स, यानी उस मिट्टी में छोटे छोटे बारीक बारीक से कंकर पत्थर पाए जाएंगे. गॉट इट? ओके. देन इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर. ठीक है, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स, जो खादर है. ठीक है, कौन सी मिट्टी? खादर. ठीक, सो खादर में फाइन पार्टिकल्स यानी बारीक कण कैसे होंगे? ज्यादा होंगे. ठीक है, खादर में बारीक कण कैसे होंगे? ज्यादा. ठीक, सो खादर मतलब न्यू एलिवियल सॉइल. ठीक, सो खादर हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इट इज मोर फर्टाइल देन द बांगर. ठीक, तो कुल मिलाकर जो ओल्ड एलिवियल सॉइल है उसमें कंकर पत्थर होंगे. ओल्ड एलिवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा मोटे होंगे और ओल्ड एलिवियल सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी. किसके कंपैरिजन में? न्यू एलिवियल सॉइल के कंपैरिजन में. व्हाट इज द न्यू एलिवियल सॉइल? न्यू एलिवियल सॉइल क्या कहलाती है? बांगर. व्हाट इज द न्यू एलिवियल सॉइल कॉल्ड? बांगर. न्यू एलिवियल सॉइल है, न्यू एलिवियल सॉइल इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स, यानी इसकी मिट्टी में और भी बारीक कण होते हैं और इट इज मोर फर्टाइल. खादर जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा फर्टाइल होगी. इज इट क्लियर? नाउ अब ये तो डिफरेंशिएशन हुआ था किसका? बांगर और खादर का. ठीक है, आपके एग्जामिनेशंस में जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें
इसके बेस पर रेगुलरली क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन बांगर एंड खादर। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Differentiate Yes, between Yes, sir. Bangar and Khadar. Yes, sir. Okay, so the question was asked number of times. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I will give you the question and answers, but इस सेक्शन को बहुत ध्यान से स्टडी करना, ठीक है? चलिए, now so alluvial soil as a whole are very fertile. यानी रिमेनिंग सॉइल टाइप के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है? एलिवियल सॉइल होती है। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होगी बेटा? एलिवियल सॉइल, ठीक है। अब मोस्टली दीज सॉइल कंटेन, अब ये वाली लाइन बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समझ में आया? ये वाली Yes, sir. लाइन बहुत Yes, अच्छे से yes. लर्न करना, जो अभी मैं बता रहा हूं। दीज सॉइल मतलब एलिवियल सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। अस्मिता साहा, पलक, रिया, प्रियांशु, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हाँ, Sir. 1 मार्क का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एलिवियल सॉइल, ठीक है। और यदि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो भी पूछा जा सकता है। समझ में आया? सो नेम 2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एलिवियल सॉइल। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एलिवियल सॉइल। ओके, सो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एलिवियल सॉइल। सो एलिवियल सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे बेटा? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ठीक। नाउ these elements, that is these nutrients, are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop. Okay, due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated, ठीक है। so high fertility मतलब सॉइल जो है एलिवियल सॉइल ओवरऑल बहुत फर्टाइल सॉइल है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। लगभग हर प्रकार की फसल बहुत अच्छे से इस सॉइल में ग्रो करती है। ओके, संचिता गुड मॉर्निंग, अथर्व हनुमंते गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Okay, so there is no reply from Sanchita Bonde. It means right now she is not. फिर why you are that much late? रिद्धि बुरड़कर, सत्यम चंदेल। Good morning, sir. Okay. So, due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. ठीक है, यानी जिन इलाकों में एलिवियल सॉइल है वहां पर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, खेतीबाड़ी भी बहुत ज्यादा ठीक है, रिकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा, सॉरी यानी जस्ट अ मिनट। सो वहां पर कल्टीवेशन, खेतीबाड़ी भी काफी ज्यादा होती है एंड डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन भी कैसी है? काफी ज्यादा है। गॉट इट? ओके, नाउ सो सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया आर मोर एल्कलाइन
and can be productive after proper treatment and irrigation. Now drier areas मतलब सूखे इलाके जहां एलिवियल सॉइल तो है बट स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो ऐसी एलिवियल सॉइल जहां पर पानी की कमी है, ओके, द नेचर ऑफ द सॉइल इज एल्केलाइन। ठीक है, दो प्रकार का नेचर होता है, एसिडिक नेचर और एल्केलाइन नेचर। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट ईयर कहीं पर केमिस्ट्री में एक पीएच वैल्यू सुना था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. वो जो पीएच वैल्यू होता है, मुझे जहां तक ध्यान है, यदि पीएच वैल्यू 7 के ऊपर है तो नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और 7 के नेचर है, हाँ, बेसिक। सर अगर 7 के ऊपर होता है तो वो बेस होता है। अच्छा, 7 के ऊपर बेसिक और 7 के नीचे एसिडिक। आया समझ में? तो वही का वही बेसिक, दैट इज अल्कलाइन नेचर। ठीक है, सो जो सॉइल है ड्रायर एरियाज में वहां पर एल्कलाइन प्रॉपर्टीज होंगी। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन बी प्रोडक्टिव, है ना? उस सॉइल में प्रोडक्टिव मतलब फसल ली जा सकती है आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब यदि अल्कलाइन नेचर की सॉइल है तो उसके अल्कलाइन नेचर को मैनेज करने के लिए उस प्रकार का फर्टिलाइजर्स या मैन्योर उस सॉइल में मिक्स करेंगे। और ड्राई है इसलिए क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन। इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब छोटा सा रिकैप्चुलेशन की एलिवियल सॉइल में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो एरिया ऑफ द एलिवियल सॉइल, एरिया ऑफ द एलिवियल सॉइल। और एक क्वेश्चन किसके बेस पर होगा? डिफरेंशिएट बिटवीन बांगर एंड खादर। ठीक है, और एक क्वेश्चन छोटा सा आपका 1 मार्क का होता है, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एलिवियल सॉइल। तो इतनी चीजें बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the next soil type is black soil. Okay, next soil type है वो क्या है? Black soil. Black soil. Now in this one, the first line itself is important. Okay, examination point of view. So these soils are black in color and are also known as regur soil. So what is the second name, or we can say one more name given to the black soil? The black soil is also called as regur soil. Okay, and black soil is ideal for growing cotton. So many a times the black soil is also called as black cotton soil, है ना? ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा कौन सी फसल ग्रो होती है? विच क्रॉप कुड बी ग्रोन बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल? इट इज Cotton. therefore the black soil is also called as black cotton soil. इसलिए ब्लैक सॉइल को और क्या कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल Black भी। cotton. Is it okay? चलिए, now it is believed that, okay, fine. So it is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the black soil formation. ठीक है? So which two factors are important for the formation of black soil? Climatic conditions and parent rock material. यानी ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेंट रॉक मटेरियल, पेरेंट रॉक मटेरियल मींस द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। जो सॉइल है वो किस प्रकार की रॉक के वेदरिंग से बनी है।
So that is what the parent rock material. Then climatic condition. Climatic condition is responsible because it is due to the different climatic condition like temperature, variation in temperature, amount of rainfall, flow of wind, है ना? So temperature है, amount of rainfall है, flow and speed of wind है. ये तीन factors क्या करते हैं? These are responsible for weathering of rocks. ये factors किसके लिए responsible हैं? Weathering of rock. Weathering of rock. है ना? Weathering So of rock. these are called as agent of weathering. So climatic conditions के कारण rocks का weathering होगा और उसके हिसाब से क्या बनेगी? Soil बनेगी. ठीक है? This type of soil is typical of the Deccan Tract. Now this type of soil means black soil. Typical का मतलब सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? Special. So it is in Deccan Tract region, spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flow. यानी जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज्यादा विशेषतः कहाँ मिलती है? Deccan Tract. Okay, now just let me take out hand. This is the map, है ना? इसको यदि देखो, so this region, ये जो पूरा इलाका है ना, this one, okay, ये जो ब्लैक कलर से, ठीक है, shadowing region है, this region is a area of black soil. ये किसका एरिया है बेटा? Black soil. Black soil. Black soil. और इसमें भी सबसे ज्यादा कहां पर है? ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना? ये रीजन कौन सा है? दिस इज द रीजन ऑफ, ओके, नासिक, जलगांव, भुसावल, है ना, मनमाड़, पुणे, पूरा का पूरा महाराष्ट्र, ठीक है? देन लार्ज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है? सो इट कंटेन्स विच सॉइल? ब्लैक कॉटन सॉइल. Okay. Then there is a small region in the state of गुजरात. गुजरात में भी ये एक इलाका है. This is what? Black soil area. ठीक है? Have you heard about the city of Rajkot? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? So ये जो राजकोट शहर है, राजकोट सिटी इज द सेंटर ऑफ और हार्ट ऑफ दिस ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ गुजरात. दिस इज कॉल्ड एज सौराष्ट्र रीजन. क्या कहलाता है? सौराष्ट्र region. Okay, so these are the two major areas in India where the black cotton soil is found. इन इलाकों में ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, पाई जाती है. गॉट इट? ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Okay, so they cover means in which part the black cotton soil is there. Okay, so it is more proper. Okay, so they cover the plateaus of Maharashtra. यानी जो black soil है वो कहाँ पर मिलती है? It is found in plateau of Maharashtra, Saurashtra, that is a part of Gujarat, Malwa, which comprises a large part of Madhya Pradesh and Gujarat, then Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Okay, it extends in the southeast direction along the Godavari and Krishna valleys. Okay, so Godavari river और Krishna valley के आसपास के इलाकों में भी क्या मिलेगी? ब्लैक कॉटन सॉइल मिलेगी.
Now, the black cotton soil are made up of extremely fine clayey material. जो black cotton soil है, extremely fine का मतलब होता है, have you ever play कैरम? कैरम खेला है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कैरम खेलते हैं, जब हम लोग कैरम खेलते हैं तो एक पाउडर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बोरिक पाउडर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. what is the color of that boric powder? White. White. Good, very good. अच्छा, जो लोग रेगुलर कैरम खेलते हैं, आपने कभी देखा होगा कि sometimes the players are using a little bit pink color powder also. That is sometimes called as disco powder. Yes, Yes, sir. Yes, हाँ. sir. अच्छा, ये बताओ कि पिंक कलर का जो पाउडर है वो बहुत ज्यादा फाइन बारीक टेक्सचर में, अब आपको पाउडर को ऐसे उठाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू फाइंड द फाइननेस. सो पिंक वाला बिल्कुल मुलायम लगता है या फिर वो बोरिक पाउडर मुलायम लगता है? Pink powder. बोरिक वाला ज्यादा मुलायम है. पिंक वाले में आपको ऐसा खुरदुरापन महसूस होगा. कैसा महसूस होगा? खुरदुरा, ऐसा लगेगा जैसे क्या है, कुछ छोटे छोटे कण हैं. ठीक है. सो क्लेई मटेरियल का मतलब होता है कि वो जो मटेरियल है वो पिस पिस कर इतना बारीक हो जाए कि व्हेन वी होल्ड इट इन आवर हैंड, हाथ में ऐसे होल्ड करें तो हमें खुरदुरापन महसूस नहीं हो. बिल्कुल चिकना सा मटेरियल. समझ में आया? Yes, sir. हाँ. Yes, So sir. that type of material is known as क्लेई मटेरियल. इस प्रकार की जो मिट्टी होती है, मिट्टी में इस प्रकार के जो कण होते हैं, दैट इज व्हाट क्लेई मटेरियल. इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, the black soil are well known for their capacity to hold moisture. अब ब्लैक सॉइल की सबसे बड़ी विशेषता है, कैपेसिटी क्या है? इट होल्ड मॉइस्चर. नाउ होल्डिंग मॉइस्चर मतलब एक बार पानी दे दो, बारिश हो गई तो काफी लंबे समय तक उस मिट्टी में क्या पानी एब्जॉर्ब रहता है. ठीक. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश. ठीक है. तो what are the nutrients present or available in black soil? ब्लैक सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ, रिद्धि बुरड़कर रीड आउट द न्यूट्रिएंट्स. हाँ, रीड आउट. Your voice is not audible. Okay, Rukshada Gohkar, read out the minerals present in black soil. Which nutrients are there? Calcium carbonate, magnesium, potash. Okay, so calcium carbonate, magnesium, potash, and just a minute. Okay, Lime. And Lime. okay. lime. Now what is lime? LIME, lime. कैल्शियम ऑक्साइड, चूना होता है ना. Yes, sir. इसीलिए हमारा ये जो ब्लैक सॉइल का एरिया है, इस ब्लैक सॉइल के एरिया में और क्या मिलता है? लाइमस्टोन भी मिलता है. क्या मिलता है? Limestone. अच्छा, लाइमस्टोन इज यूज्ड फॉर मेकिंग विच प्रोडक्ट? शिवम, लाइमस्टोन का यूज कौन से प्रोडक्ट को बनाने में होता है या हो रहा है? सीमेंट बनाने में.
सीमेंट बनाने में? हाँ। तो तुम बनाओगे क्या सीमेंट? नहीं। ठीक, चलो। सो ये वाली लाइन बहुत ध्यान से लर्न कर लेना। हाँ, which nutrients or what are the nutrients present in black soil? Now next line is also important. These soil are generally poor in phosphoric content. यानी ब्लैक सॉइल में किस कंटेंट की कमी होती है? So which content is poor, that is deficient in Phosphoric. ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल में किस कंटेंट की कमी है? सो विच न्यूट्रिएंट और विच कंटेंट हैज और इज इन लेस क्वांटिटी? फॉस्फोरिक कंटेंट। Phosphorus. ओके, दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। जब गर्मी का सीजन होता है तो ब्लैक सॉइल के जो एरियाज हैं, ब्लैक सॉइल वाले जो इलाके हैं, वहां की मिट्टी में डीप क्रैक, डीप क्रैक मतलब हम कहते हैं ना जमीन फट गई और दरार आ गई। हैव यू हर्ड? Yes, sir. Yes, sir. इस प्रकार से Yes, sir. जो ब्लैक सॉइल एरियाज हैं, ब्लैक सॉइल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल लैंड है एंड इवन जो कॉमन लैंड है, वहां पर भी समर सीजन में डीप क्रैक है ना, मिट्टी फटी हुई दिखाई देगी। नाउ इट हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, जिसके कारण सॉइल में क्या होता है? प्रॉपर एरेशन, एयर जाती है। अच्छा ये बताओ, सॉइल में एयर जाने का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एरेशन ऑफ द सॉइल? एरेशन मतलब हवा जाना, तो सॉइल में अंदर तक हवा जाती है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? अस्मिता? Yes, sir. What is the importance of aeration of soil? Sir, aeration is important because the air or the oxygen reaches into the soil, which helps the organisms like earthworm to live in the soil, which is very important for soil. Very good. Okay. Aeration of soil क्यों जरूरी है? क्योंकि earth contains not only earth form but also number of microorganisms. These microorganisms continuously, okay, do the fertilization of soil, है ना? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करते हैं। सो दीज आर हेल्पफुल फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल में क्या होना जरूरी है? प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कब करेंगे? जब उस सॉइल में प्रॉपर क्या जाएगी? एयर जाएगी। ठीक है, इसीलिए यदि आप लोगों को, है ना, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? समय समय पर मिट्टी को पलटते हैं, प्लगिंग करते हैं ना, तो प्लगिंग क्या करता है? एरेशन में हेल्प करता है। यहाँ ब्लैक सॉइल के केस में ये एरेशन किससे हो रहा है? ड्यू टू द crack. Now these soil are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. These soil are sticky. जो black soil है वो sticky होती है। तुरंत, यानी मिट्टी यदि गीली होगी, एक बारिश हुई तो उस खेत में, उस जमीन पर चलना या सीड सोइंग करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इस प्रकार की सॉइल में खेती करना बड़ा मुश्किल का काम है। बिकॉज ऑफ दैट मोस्टली द फार्मर्स आर डूइंग द सीड सोइंग बिफोर द रेनफॉल स्टार्ट। बारिश शुरू होने के पहले ही क्या कर दी जाती है? सीड सोइंग करते हैं। यानी
एक या दो पानी गिरा, हल्का सा ऊपर की मिट्टी थोड़ी बहुत गीली हुई और क्या कर देंगे, सीड सोइंग कर देंगे। क्योंकि एक बार यदि भारी बारिश हो गई तो फिर उस एग्रीकल्चरल लैंड में सीड सोइंग पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. so the next soil type is a red and yellow soil, है ना। ऐसी सॉइल जो कभी कभी लाल दिखाई देती है यदि आयरन कंटेंट ज्यादा है, and if the iron content is comparatively less, it looks little bit yellow. Okay, so red soil develops on crystalline igneous rock. यानी रेड सॉइल किससे बनेगी, इग्नियस रॉक से बनेगी। ओके, एंड दीज इग्नियस रॉक्स हैव ए क्रिस्टलाइन नेचर। ये इग्नियस रॉक्स में क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। रेड सॉइल, ओके, सो it develops in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पार्ट है और सदर्न पार्ट है जहां पर रेनफॉल इज कंपैरेटिवली लेस, ठीक है, देयर दिस टाइप ऑफ रेड सॉइल डेवलप थ्रू इग्नियस रॉक. Yellow and red soil are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of Western Ghat. These soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock. ठीक है, ये जो सॉइल है इस सॉइल में कैसा कलर आ जाता है, रेडिश कलर, बहुत गहरा लाल कलर होगा। क्यों? क्योंकि जिन रॉक्स से ये सॉइल बनी है, ठीक है, उन रॉक्स में कौन सा कंटेंट होता है, आयरन कंटेंट होता है। क्या होता है, Iron content. Iron content. अभी आप लोगों का केमिस्ट्री का कोई सा चैप्टर चल रहा है ना, फर्स्ट या सेकंड? First. Yes. हाँ, ठीक है। सो उसमें आयरन का रिएक्शन किससे होता है, ऑक्सीजन से। आयरन ऑक्साइड सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो नेचर में रॉक्स के अंदर जो आयरन है उसका रिएक्शन किससे हो गया, ऑक्सीजन से। सो वो क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। और वही आयरन ऑक्साइड क्या होता है, रॉक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब वेदरिंग होती है तो वही आयरन ऑक्साइड कंटेन वाला जो रॉक मटेरियल है वो छोटे छोटे कंकर पत्थर के रूप में रेड कलर की सॉइल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो रेड सॉइल है उस रेड सॉइल में जो रेडिश कलर है वो किसके कारण आया है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हम लोगों का स्कूल का रनिंग ट्रैक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यदि आप लोगों को अंबुजा स्कूल में युवान का टाइम पीरियड मालूम हो, 3 साल पहले, है ना, जब हमारी स्कूल में युवान हुआ था, तो उस ट्रैक को प्रिपेयर करते समय रेड कलर का एक सॉइल मटेरियल हमने डाला था, ध्यान है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो उस समय पर वो सॉइल का कलर कैसा दिखाई दे रहा था, Red. Red. डार्क रेडिश कलर था। कैसा था, Dark red. Dark red. डार्क रेड। तो डार्क रेड कलर Dark उसमें red. क्यों था, क्योंकि उस समय वो सॉइल जो थी माइंस से नई नई निकाली गई थी और उसमें किसका डिफ्यूजन था, आयरन कंटेंट का। ठीक है, नाउ इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक, अब कितने साल बीत गए हैं उस मिट्टी को या मुरुम को बिछाए हुए, 3 years. 3 years। अब ये 3 सालों में उस मिट्टी पर हर साल बहुत ज्यादा बारिश होती है, Yes, sir. Yes, sir. पानी गिर रहा है ना, Yes. पानी गिर Yes, रहा sir. है तो वो जो सॉइल
पहले बिल्कुल डार्क रेड कलर की थी, अब उस सॉइल का कलर क्या होना शुरू हो गया है, चेंज होना शुरू हो गया है ना। जो स्टार्टिंग में जितना रेड कलर था उतना रेड कलर अभी दिखाई नहीं देता। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि वो जो आयरन ऑक्साइड है उसमें रिएक्शन हो करके कौन सा मॉलिक्यूल ज्वाइन हो गया, H2O। कौन सा मॉलिक्यूल, H2O। जब किसी कंपाउंड में वाटर का मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाता है, ऐड हो जाता है, सो दैट इज व्हाट, हाइड्रेटेड फॉर्म। और उस हाइड्रेटेड फॉर्म में आने के कारण उसका कलर प्योर रेडिश से अब कैसा होना शुरू हो गया है, येलोइश होना शुरू हो गया है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay, well, so is there any doubt, students, still here? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So, No, sir. most of the portion for this chapter is over, है ना? Very last portion is left, so we may be able to complete within 2 more working days. Okay, so we are binding up the session here only, students. Okay, so that's all for today live class. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you, beta.